Hello my dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing Science Class 7 and here this is your book Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, today we are going to start with a new chapter. This is chapter number 10 of your book and the name of the chapter is Electric Current and its Effects. So children, in this chapter we are going to learn about electric circuits and its components, electric fuse, electric circuit diagram of electric components, magnetic effect of electric current, electric bell and heating effects of electric current. So in class 6 we studied about various aspects related to electricity. So electricity से related बहुत सारी चीजें हमने class 6 में पढ़ी थी. We understood its importance and also how it flows. So उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी importance पढ़ी थी और कैसे वो flow करता है. That is the path it takes. Now let us review it once again. Electric circuit and its components. An electric circuit is made up of various electric components. So जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे वो बनता है. इट इज अ पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. ये वो पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट आर, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सर्किट के वो हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट मे बी अ सेल और अ बैटरी. सो इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है वो या तो सेल होना चाहिए या फिर एक बैटरी होनी चाहिए, like this. Now, the next is a switch or key to put the electric current on and off position in the circuit. So, circuit को on या फिर off position पे लाने के लिए एक switch होना चाहिए. जैसे उसे अटैच करे तो on हो जाए और जैसे उसे remove करे तो circuit off हो जाए. So here you can see the diagram of electric circuit in on and off position. So जैसे ही on position पे तो आप देख सकते हो lamp is on और जैसे ही off position पे तो lamp is in off position. A color to indicate the flow of electric current in a circuit. एक color की जरूरत है जो ये बता सके कि electric current है circuit में. Whenever it glows, it indicates that the electric current is flow in the circuit. So जब भी ये ग्लो करे तो उसका मतलब ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में. Now connecting wires that connect all the components of the circuit so as to enable the circuit electric current to flow. So अब connecting wires होना चाहिए जो मेन component का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं. Now let's learn about the electric circuit diagram. It is a diagram that shows how the different components are arranged in an electric circuit. So ये diagram क्या बताता है कैसे जो different components है वो electric circuit में arranged है using the symbol of the components. The different components of a circuit are described using symbols. Let's understand the symbols using the different components of a circuit. So here let's look at the diagrams. This is electric cell. Here battery and two cells. Next, electric bulb or electric lamp. Switch is given here to open and switch is given which means closed. Connecting wire like copper wire. So a connecting wire होनी चाहिए. This is a connecting wire. Some electrical components and their symbol. So इन symbols को हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इन symbols का क्या meaning है. Now let us draw some simple circuit diagrams. Look at the circuit diagram A. It consists of a cell, a bulb, connecting wires and a switch that is in the on position and it is called closed circuit diagram. So जब हमने डायग्राम ए को देखा था तो उसमें देखा था कि ये सारी चीजें थी जो यहाँ पे मेंशन है और इसी को ही हम क्लोज सर्किट डायग्राम कहते हैं. Here you can see figure A. This is a closed circuit diagram. यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे
ओपन या फिर क्लोज बना हुआ है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, एंड दिस इज द ओपन सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लोज पोजीशन को ओपन कर दिया गया है और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही। सो सर्किट डायग्राम ड्रॉन यूजिंग सिंबल्स और वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सो जो सिंबल हमने अभी पीछे पढ़ा था उनको यूज करके ये सर्किट डायग्राम बनाया गया है। सो यू हैव टू मेक द डायग्राम्स लाइक दिस वन। Now look at the circuit diagram B. It also consists of a cell, a bell, connecting wires and a switch that is in the off position. It is called the open circuit diagram और इसे open circuit diagram कहा जाता है। Here it should be noted that the bulb glows in first case because the circuit is complete. So जो first case था, जो first diagram में उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो bulb है वो क्या है, वो glow कर रहा है, वो चमक रहा है। सो इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट है, एंड इट डज नॉट ग्लो इन द सेकंड केस एज द सर्किट इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट। लेकिन सेकंड केस में ये ग्लो नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट है वो टूटा हुआ है या फिर इनकम्प्लीट। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। The important points to remember while drawing the circuit diagram are क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। There should be a source of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स होना चाहिए, that is a cell or a battery. सेल या फिर बैटरी होनी चाहिए। There should be no gaps between the wire. वायर के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। That is the path of the current should not be broken. जो पाथ है करंट का वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। The switch should have a provision that it can be switched on or off. जो स्विच है उसमें एक जगह बनी होनी चाहिए जिससे हम स्विच को ऑन और ऑफ दोनों ही कर सके। Now, heating effect of electric current. Children, these questions you have to do on your own. Heating effect of electric current. Whenever an electric current flows through a conductor, some of it gets converted into the heat energy. सो जब भी किसी भी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करती है, इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है तो वो क्या करती है, उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। द हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो ये जो हीट इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। एज ऑलरेडी सेड, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज वेरियस एप्लीकेशंस। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। Many electrical appliances like electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, electric room heater, geyser, immersion rod, etc. work on the heating effect of the electric current. So, electric current का जो heating effect है उस पे ही ये सारे चीजें work करती हैं। All these appliances contain tightly wound coil called heating element. और इन सब appliances में एक tightly बुना हुआ एक कॉइल होता है जिसे हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। एन एलिमेंट हीट्स अस अप ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो जैसे हम इस पे से इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन करते हैं तो ये जो एलिमेंट है ये गर्म होने लगता है। एंड द हीटिंग एलिमेंट इज यूजुअली मेड अप ऑफ एन एलॉय कॉल्ड निक्रोम, और ये एक एलॉय सा बनता है जिसे निक्रोम कहते हैं। Here you can see the picture of a room heater heating the room. A large amount of heat is produced on passing current through the electrical appliances. So इन appliances से काफी ज्यादा हीट निकलती है जब हम इन्हें जो है इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। This heat is produced in the heating element due to which it becomes red hot. और ये जो heat होता है ये उस element को red hot means एकदम red कर देता है। And in many electric appliances, element is not covered and can be identified as it is red hot glow on switching on. कई चीजों में ये जो एलिमेंट होता है इसे कवर नहीं किया जाता है जिससे ये हमें रेड हॉट कलर हमें दिखाई देता है। ऑन स्विचिंग ऑन, जैसे हम इसे ऑन करते हैं। द अप्लायंसेस, द हीट जनरेटेड इज पुट टू स्पेसिफिक यूज। और जो भी हीट इससे निकलती है उसे उसका एक पर्टिकुलर यूज होता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज टू आयरन द क्लोथ्स। अभी जो इलेक्ट्रिक आयरन किस काम आता है, क्लोथ्स का आयरन करने की। रूम हीटर इज यूज टू वार्म द रूम। रूम हीटर किस काम आता है, रूम को वार्म करने की, एक्सेट्रा। सो देयर आर मेनी अदर अप्लायंसेस
So there are many other appliances like this that are used. The bulb has a very thin wire through which the electric current passes. So bulb जो होता है इसमें आप देख सकते हैं बहुत पतली सी वायर होती है जिससे करंट पास होता है and it is made up of special material called tungsten. ये एक स्पेशल मटेरियल से बनता है जिसे टंगस्टन कहते हैं and this wire is called filament और इस वायर को फिलामेंट कहते हैं. This filament gets heated up when the bulb is switched on. तो जैसे हम बल्ब को ऑन करते हैं तो ये जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है when the bulb is switched on. Electric current is passed through it. The bulb becomes white and hot and emits light. जो बल्ब है वो व्हाइट हो जाता है, गर्म हो जाता है और लाइट देने लगता है. The bulb is used to get light, but it produces heat. ये जो है लाइट देने का काम तो करती है लेकिन ये हीट भी प्रोड्यूस करती है. दिस कॉजेज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है. सो इट इज बेटर टू यूज फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स. सो इसलिए जो हमें फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स या फिर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प विच इज CFLs यूज करने चाहिए टू प्रोड्यूस लाइट, जो सिर्फ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, हीट को प्रोड्यूस नहीं करते. As these do not have filaments, they do not produce heat and thus save energy. क्योंकि इनके अंदर फिलामेंट नहीं होता है इसलिए हीट को प्रोड्यूस नहीं करती हैं और इसकी वजह से ये एनर्जी को सेव करती हैं. The CFLs can be fixed in ordinary bulb holders. नॉर्मल जो बल्ब होल्डर होता है आपके घरों में उसमें हम इजीली इसे लगा सकते हैं and they may cost high while buying but consume less electricity. ये थोड़े महंगे तो होते हैं बल्ब्स के कंपैरिजन में लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कम लेते हैं. एंड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने में हेल्प करते हैं. दे आर पावर एफिशिएंट, ये पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं इसलिए पावर एफिशिएंट होते हैं. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिससे हम किसी भी तरीके के डैमेज को कम करने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में. एंड इफ वेरी हाई करंट सडनली पासेस थ्रू इट, अगर बहुत तेजी से जो है करंट एकदम से पास होता है तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को मींस डैमेज को प्रोटेक्ट करने में. अ फ्यूज आल्सो वर्क्स ऑन द हीट इफेक्ट ऑफ द करंट, ये भी हीट इफेक्ट पे वर्क करता है. अ फ्यूज इज अ पीस ऑफ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. सो इसके अंदर एक थिन वायर होती है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है. व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज इन द सर्किट, जब सर्किट में एकदम से बहुत तेज करंट आता है द फ्यूज वायर गेट्स टू मच हीटेड. सो जो फ्यूज का जो वायर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, और वो मेल्ट होके सर्किट को तोड़ देता है. This stops the flow of current and prevents the electric appliances from getting damaged. और जिसकी वजह से जो करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को तोड़ने से बचाता है. The problem in the household circuit can occur due to, अब household circuit जो होता है हमारे घर में जो सर्किट होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हें कैसे वो होते हैं, ये प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं. First is overloading. So that is when too many electric appliances are connected to a single socket. जब एक ही सॉकेट में बहुत सारी चीजों को हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाता है. Which causes large withdrawal of current, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो करंट जो है निकालने लगते हैं ऐसे सर्किट्स. Next is short circuiting. This occurs when due to defective or damaged wiring. So defective or damaged wiring की वजह से ये short circuit होता है and this can even cause electric fire. उसकी वजह से fire भी means आग भी लग सकती है. Sudden fluctuation of current that occurs in power supply system. So एकदम से जो fluctuation होता है करंट का वो एकदम से पैदा हो जाता है जिससे जो है जो पावर सप्लाई सिस्टम होता है, पावर सप्लाई सिस्टम में ये सडन फ्लक्चुएशन जो है स्टार्ट हो जाता है करंट का. समटाइम्स सडन करंट फ्लोज इन अ सर्किट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और लाइव और अ न्यूट्रल वायर. सो कई बार होता है
सडनली करंट जो फ्लो होने लगती है किसी भी सर्किट में ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव्स की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से एंड किसी एक न्यूट्रल वायर से। These days miniature circuit breakers, so अब जो है ये miniature circuit breakers जो यूज किए जा रहे हैं जिन्हें हम MCBs भी कहते हैं। I use instead of fuse, fuse की जगह भी नहीं यूज किया जा रहा है। These are the switches that turn off automatically when the current overlaps. So ये switches अपने आप ही बंद हो जाती हैं जब करंट जो है एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगता है या ओवरफ्लो होने लगता है। As a result, the electric circuit is protected from damage that may occur due to overloading or short circuit. So इसकी वजह से क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है खराब होने से जब भी ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है and turns the switch on of MCB on either manually or automatically. The circuit becomes complete again and the circuit starts flowing in it. So ऐसे केस में क्या होता है कि सर्किट को या तो मैनुअली बंद कर सकते हैं या तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है and the current starts flowing in. MCBs protect the electric appliances as well as people. ये जो MCBs हैं ये appliances को तो बचाते हैं, ये साथ में लोगों को भी बचाते हैं. The fuse can be used only once and then it has to be replaced as it melts and breaks. So ये जो fuse है इसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है क्योंकि ये जो है मेल्ट हो जाते हैं या तो ये खराब हो जाते हैं और इन्हें जो है रिप्लेस करना पड़ता है. MCB on the other hand can be reset and used again and again. MCB को फिर से हम रीसेट कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं. ओनली गुड क्वालिटी MCB शुड बी बॉट. जो MCB है वो गुड क्वालिटी के ही होने चाहिए हमारे पास. वी मस्ट चेक द ISI मार्क बिफोर बाइंग MCB. MCB को खरीदने से पहले हमें ISI मार्क जो है चेक करना चाहिए. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट start behaving like a magnet. This is called the magnetic effect of electric current. So जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इन वायर से, जो वायर हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिक करंट होते हैं start behaving like magnet, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं. तो इसीलिए इसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट का. It was first noticed by a scientist named Hans Christian Ørsted and the magnetic effect of electric current can be demonstrated by the following activities. So पहली बार किसी साइंटिस्ट ने इसे नोटिस किया था और इसके जो भी फीचर्स हैं उन्हें हम कुछ एक्टिविटीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. The magnetic effect of current has many applications. जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. The first is the electromagnet. We have just read that the wire carrying electric current behaves like a magnet. हमने अभी पढ़ा था कि जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. Now wrap a wire around a soft iron piece called a core. So हमने एक आयरन का एक पीस लिया, एक नेल ली और उसमें हमने क्या किया, एक वायर को अटैच कर दिया. When the current is passed through the wire, जब हम इस वायर से करंट को पास करते हैं, the iron piece behaves like a magnet. ये जो आयरन पीस है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. This kind of magnet is called an electromagnet. और इस तरीके के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. The magnetism of an electromagnet lasts only till the current passes through the coil. और जो मैग्नेटिज्म है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो तब तक ही रहता है जब तक उस कॉइल से करंट को पास किया जा रहा है. So here you can see this is a switch and cell. Both of these are inserted. So जैसे इससे हम करंट पास कर रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज होने लग रहा है. Now activity 3 is a very good example of how the electromagnet works. कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्टिविटी 3. When the circuit is complete, the current flows. जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो करंट जो है फ्लो करने लगता है. As a result, the iron attaches the pin. और जिसकी वजह से ये जो आयरन है पिन से अट्रैक्ट होने लगता है. When the circuit is broken, the current stop flowing. So जैसे सर्किट को हम बंद कर देते हैं करंट जो है
चलना बंद हो जाता है, and the iron loses its magnetic properties and the pin falls down. और आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है और पिन जो है नीचे गिर जाता है. An electromagnet is a temporary magnet and its mechanism is only till the time of current passes. So ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है और इसका जो मैग्नेटिज्म है ये सिर्फ एक टाइम के लिए होता है जब तक इसमें से करंट पास हो रहा है. When the current stops, the iron core loses its magnetism. और जैसे ही जो है करंट को बंद किया जाता है ये अपने मैग्नेटिज्म को खो देती है. What is a solenoid? A solenoid is a cylindrical coil consisting of a large number of turns in an insulated wire. So ये जो solenoid होता है ये एक cylindrical coil होता है जिसमें बहुत सारे turns होते हैं एक insulated wire का. The solenoid becomes an magnet, electromagnet, when the wire is wound around a soft iron core. So जब इसे एक soft iron core के चारों तरफ से wound कर दिया जाता है means घुमा दिया जाता है तो ये एक electromagnet का काम करता है. A solenoid is a tightly packed coil having a sharp end of a long cylinder. So solenoid जो होता है ये tightly packed होता है coil जो जिसका जो शेप है वो लॉन्ग सिलेंडर की तरह होता है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ solenoid. The strength of an electromagnet depends on the number of turns the wire around the core and the amount of current passing through it. So कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना उसमें कितना स्ट्रेंथ है ये जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उस वायर को हमने कितनी बार टर्न कर रखा है, घुमा रखा है या फिर कितना ज्यादा उसमें से करंट पास की जा रही है. मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर इज द मैग्नेटिक इफेक्ट. सो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. These are used in devices such as telephone, telegraph, electric bell, loudspeaker, etc. So अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ का यूज किए जाते हैं? टेलीफोन में, टेलीग्राफ में, इलेक्ट्रिक बेल में या फिर जो है लाउड स्पीकर और भी बहुत सारी चीजें हैं. It is used by doctor to remove tiny iron particles from the patient's eye or other wounds. So ये जो यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा छोटे मोटे आयरन पार्टिकल्स पेशेंट की आईज या फिर चोट में से निकालने के लिए. Powerful electromagnets are used in cranes to lift heavy objects. So ये जो powerful electromagnets हैं इन्हें cranes में भी लगाया जाता है ताकि heavy objects को ये उठा सके. These are also used to separate magnetic materials from heap of junk scrap. और इन्हें भी यूज किया जाता है अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स में जब जो है एक ढेर हो जंक का, जंक स्क्रैप का. सो ऐसे जो है कूड़े के ढेर में भी हम इन्हें यूज करते हैं. दे आर यूज्ड इन मोटर्स दैट ड्राइव फैंस. सो इन्हें मोटर्स में भी लगाया जाता है जो फैंस को चलाते हैं. वॉशिंग मशीन्स में भी लगाया जाता है, मिक्सर में भी लगाया जाता है एंड मेनी अदर थिंग्स. बुलेट ट्रेन्स एज वेल एज ऑडियो वीडियो टेप्स रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो ये जो बुलेट ट्रेन्स हैं ये या जो ऑडियो वीडियो टेप्स हैं ये सब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पे ही बेस्ड है. नाउ एन इलेक्ट्रिक बेल. It is a device that works on the principle of magnetic effects of electric current. So ये एक डिवाइस है जो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वो क्या प्रिंसिपल है? मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रिंसिपल है. And it is the direct application of the electromagnet. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है. The diagram given below shows a simple electric bell. अब हम डायग्राम देखेंगे जिसमें एक सिंपल इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम दिया गया है. The components of it are an electromagnet, an armature, a contact, adjusting screw, a soft iron strip, a gong, and a hammer. The armature consists of a soft iron rod mounted on a spring. So children, here you can see this is a circuit diagram of electric bell, and here you can see electromagnet is used to generate the sound in this bell. Here the hammer is given, screw is given, contact adjusting, armature, spring, iron rod, switch is given, it is in the off position,
और दिस इज अ गोंग। जैसे ही जो है स्विच को हम अटैच करते हैं, ये हैमर आके गोंग पे स्ट्राइक करता है, जिससे कि साउंड जनरेट होता है। One end of the iron rod presses against the top of the contact adjusting screw. So जो adjusting screw है उस पे जो एक एंड है आयरन रॉड का वो उस पे जाता है। एंड लेट अस लर्न हाउ द बेल रिंग्स। बेल कैसे रिंग करता है, लेट्स सी। व्हेन द स्विच इज प्रेस, जैसे हम स्विच को प्रेस करते हैं, द सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो करने लग जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है उसे जो है अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। एज द हैमर इज अटैच टू द स्ट्रिप, क्योंकि ये जो हैमर है ये इस स्ट्रिप पे ही अटैच है। तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होता है, स्विच को हम ऑन करते हैं, ये जो है हैमर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एज अ रिजल्ट द साउंड इज प्रोड्यूस। सो इसकी वजह से ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होने लगता है। अब आप देख सकते हो हैमर ने जो है गोंग को हिट किया है, जिसके बाद साउंड आने लगा। On getting attracted to the magnet, the soft iron strip is now able to touch the screw. So जैसे ही ये जाके जो है अटैच होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो साउंड जो है प्रोड्यूस होने लगता है। स्क्रू को ये टच कर लेता है, ड्यू टू विच द सर्किट ब्रेक्स एंड द magnet loses its property and it is not able to attract the soft iron strip, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है और वो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप गोज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, और जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है वो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। एंड टचेस द स्क्रू, और स्क्रू को टच कर लेता है। इट कंप्लीट्स द सर्किट अगेन एंड द करंट फ्लोज वंस अगेन। सो ये जो है सर्किट को फिर से कंप्लीट करता है, और जिसके बाद जो फ्लो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। एज लॉन्ग एज द स्विच इज ऑन, जैसे ही स्विच ऑन होता है, स्टेप 1 2 3 गेट्स रिपीटेड एंड वी हियर द रिंग ऑफ द बेल। सो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, जो स्टेप्स अभी हमने 1 2 3 पढ़े थे वो फिर से रिपीट होते हैं, और जो बेल है वो बजने लग जाती है। Now children, let's revise what we have learned in this chapter. Electric circuit is the part through which an electric current flows. Electric circuit has many components, cells or battery connecting wires, bulbs and keys. Circuit diagram shows how different components are arranged in a circuit. Whenever an electric current flows through a conductor, some of them gets converted into heat energy. The circuit diagram may be one open or closed. All electrical appliances work on the heating effect of current. An electric fuse is a safety device used to prevent damage in the electric circuit. These days, miniature circuit breakers, which is MCBs, are used instead of fuse wires as they can be reused. On passing electric current through a wire, it starts behaving like a magnet. This is called the magnetic effect of current. A wire that behaves like magnet is called the electromagnet. An electric belt is a device that works on the principle of electromagnet. Now children, let's do the question answer. Identify the symbol. So write it down here. Now, what is formed when many cells are connected together? जब बहुत सारे cells एक साथ connect हो जाते हैं तो क्या बनता है? Name and allow of which heating element is made. Heating element किस चीज से बनता है? So children, this is alloy. Name an alloy of which heating element is made. What is used in place of fuse these days? So in these days MCBs are used. And name a device in which electromagnet is used.
सो किसी भी एक डिवाइस का नाम लिखना है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया था, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल. What is the role of connecting wires in a circuit? And what is the importance of fuse in a circuit? What happens when the switch of an electric bell is pressed? What is the use to remove tiny iron particles from a patient's eye? Electromagnet. Now, when does a solenoid becomes an electromagnet? So, when it is attached to iron bar, then it becomes an electromagnet. So, children, you have to answer the rest of the questions like this, and I hope that you have understood the chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.